examination questions. Are we all ready for it? Are we all good to go? Any doubts? ये जो सीरीज चली है DI और RRB की, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें से काफ़ी टॉपिक्स आपको पूछे जा सकते हैं DI एंड RRB दोनों में। तो आपने इनको तैयार करके चलना है अच्छे से, क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत महत्वपूर्ण है आपके पेपर में। ये आ सकते हैं, लेट मी टेल यू, ये बिल्कुल आ सकते हैं माय डियर। तो आपने एकदम तगड़ी तैयारी करके चलनी है, आपने एकदम तगड़ी तैयारी करके चलनी है हमारे साथ। यस और नो? करते चलेंगे क्या हम सभी लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। Today we are going to discuss about the QA and QC most important topics. Okay, we'll begin soon. We will be beginning soon. ठीक है, जल्दी हम शुरू करेंगे इन टॉपिक्स का डिस्कशन। Are we all set? Good to go? क्या सभी लोग तैयार हैं? Give me a quick thumbs up so that we can start. Yes. So what do you know about QA/QC? मुझे आप लोग बताइए कि आप लोगों ने QA/QC के बारे में क्या सुना है? What are you all aware of? क्या क्या टॉपिक्स है? QBD, DOE, validation parameters, क्या सुना है आपने? BMR, SOP. What have we all heard till now? Tell me. सभी बताते चलेंगे मुझे. Yes. चलिए चलिए जल्दी से बताते चलेंगे माय डियर, जल्दी से बताते चलेंगे माय डियर. What do we know about QA/QC? What do we know about QA/QC? अरे लिमिटेड पढ़ा था डिप्लोमा में, कोई बात नहीं, अभी मेरे साथ आप डिटेल में पढ़ेंगे. डोंट फियर माय डियर, डू नॉट फियर माय डियर. ठीक है, shall we begin? So the first thing when I talk about QA/QC is the difference between QA/QC. लोग नाम तो साथ में ले लेते हैं QA/QC QA/QC, but what is the difference between QA and QC? So quality assurance is said to be a proactive process which is a process oriented, while quality control is a reactive process which is product oriented. बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. क्वालिटी अश्योरेंस focuses on prevention, while quality control focuses on identification of defects. क्योंकि कभी भी there are a lot of strategies like CAPA, corrective action, preventive action. You take corrective measures and prevent the further risk. So there's a risk management tree, or you can say risk benefit analysis. So in that risk benefit analysis or risk management tree, there is risk identification, risk assessment, risk severity and probability, and then risk mitigation. Okay, so firstly you identify कि risk क्या है, root cause analysis, problem जड़ से problem identify करनी है, root cause analysis. Then you check risk की severity और probability कितनी है, कितना ज्यादा ये risk harm कर सकता है और कितना ज्यादा chances है कि ये risk हो. Risk probability and risk severity. Then risk assessment, कि ये risk हो कैसे कैसे रहा है, different ways you assess the risks. ठीक है, and then finally you mitigate the risk, risk को कम करना. So that is called risk management tree or risk management analysis or risk decision tree. ठीक है, then you have different strategies like process analytical technology, change control, out of trends and out of specification results. So these are all words, standard operating procedures, dossier filing, sorry, batch manufacturing record and master formula record. These are different terminologies that are related to the documentation purpose, because QA QC is क्या, check करना, evaluate करना कि चीजें सही हो रही है और उसको document करना. That is the main work of QA QC. So in today's class I'm going to teach you everything in very very good and comprehensive way कि आपको सारी चीजें समझ आ जाए. So please make sure that you have these clear to you. QA manages quality, QC verifies its quality. So you should know that GMP, according to the GMP and CGMP, current good manufacturing practices and good manufacturing practices, as per European Union and US FDA.
and Schedule M of the Drug and Cosmetic Act. Then you should know the GDP, not the gross domestic product, but the good documentation practices. GLP, good laboratory practices. ICH guidelines related to Q8 and Q12. So Q8 to Q10 is pharmaceutical quality system, pharmaceutical risk management system, and pharmaceutical development system. So quality, development, and risk management are all in the ICH Q8 to Q10 to bring about corrective action, preventive action, to minimize the defects, deviation, errors, and to bring about a change control. Next up, we have quality control essentials. So you have to do quality control tests for raw materials, जो आप products लाते हैं, intermediaries, that is called IPQC, in process quality control, एंड फिनिश प्रोडक्ट्स. तो बोलते हैं ना क्वालिटी हर जगह होनी चाहिए. क्वालिटी शुड बी राइट फ्रॉम द रॉ मटेरियल दैट यू हैव ऑब्टेन, राइट फ्रॉम द लैक्टोज जो आपने लिया है, टू द एपीआई जो आपने लिया है फॉर टैबलेट, टू द इन प्रोसेस व्हाइल टैबलेट इज बीइंग वेट ग्रैन्युलेटेड, टिल द फिनिश प्रोडक्ट, टिल द कंप्लीट टैबलेट इज फॉर्म. सो रॉ मटेरियल से लेके इन प्रोसेस से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक हर एक प्रॉपर टेस्टिंग करना इस क्यूसी का रोल. दैट इज व्हाई इट वेरीफाइज वेदर द सब्सटेंस रीचेस द क्वालिटी. जैसे अब मटेरियल, इवन पैकेजिंग, लेबलिंग. सो पैकेजिंग, सपोज ग्लास, सो ग्लास के क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, वाटर अटैक, पाउडर ग्लास, ओके, दीज काइंड ऑफ टेस्ट. एल्यूमिनियम, आलू आलू पैकेजिंग, करेक्ट, लेबलिंग सही है कि नहीं, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, blister packaging. Then there are certain results which are called out of specification results, out of trend results. So out of specifications are critical decisions whether to reject or recall. So if the amount of API or the specificity, assay specificity कम है या ज्यादा है, so you will either recall it, कि recall the product from the market, मत बेचो उसे, ठीक है, और you will reject it कि सर ये टेस्ट है, ये हमने करी है, this is wrong, kindly test it again. Out of trends, so if it is out of trend, एक trend analysis की इस तरीके से एक line बनती है. So we plot the trend analysis, Bonferroni plot and all. So for that we come to know whether the process is optimized or not. If it's not following the trend, process optimization needs to be improved. And out of errors, refining the standards. So out of specification is a structured and retesting. Out of trends is a trend analysis, while out of exploratory is exploratory. Out of specification is infrequent, मतलब हर time it's not necessary it is out of specification, because whenever we make, काफी बार जरूरी होता है that it is in the, yeah, water attack is for type 2 glass, बिल्कुल. Out of trends काफी बार हो जाता है कि मतलब आप काफी बार, in analysis also you plot a graph, sometimes it is following the line and then this is the graph, but this is not what you expect. You want the straight line trend, correct? So it is very frequent. So you should know the difference between out of specification, out of trends, and out of errors. Okay, so Q1 quality guidelines, Q1A for drug, Q1B for photostability, Q1C for dosage form, Q1D for bracketing and all. Next concept that we have is quality by design. So these are the elements of quality by design. You must know about these elements. They are very frequently asked in exams. So एक idea इसका जरूर आपको होना चाहिए. एक इसका आइडिया आपको जरूर होना चाहिए. एक होता है क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, like checking the pH, viscosity, critical material attributes, or critical process parameters like the how your mixing rate, stirring speed, homogenization. Okay, critical quality attributes means checking the viscosity, checking the pH. Critical material attributes means homogenization, stirring speed, risk assessment, design of experiment and design space, and then CCS, control strategy, so that it is following the design strategy and design space. And QTPP is quality target product profile. So these are all elements of QBD: quality target product profile, critical quality attributes, critical material attributes, critical process parameters. ठीक है, आई नो ये सब चीजें नहीं होगी, मे बी आपको बोर हो रहा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा ये क्या है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Risk assessment tools, we have FMEA, failure mode effective analysis, FMECA, failure mode effective and criticality analysis, hazard analysis and critical control points, HECAP, इशिकावा डायग्राम जिसको हम फिश बोन भी बोलते हैं. सो इस तरीके से ना इनपुट्स और आउटपुट्स होते हैं,
और इसको बोलते हैं इशिकावा डायग्राम। इनपुट्स आउटपुट्स अलग अलग, जैसे जेल स्ट्रेंथ, टाइप ऑफ पॉलीमर। सो इशिकावा या फिशबोन एनालिसिस में दिस काइंड ऑफ फिगर इज एक्सपेक्टेड। इशिकावा या फिशबोन एनालिसिस, ठीक है। जेल स्ट्रेंथ, जेल कॉन्सेंट्रेशन, टाइप ऑफ पॉलीमर, release time, real testing, design space and control strategy. So these are all the elements of QBD. फुल फॉर्म पूछ सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो मैं बताते जा रहा हूँ फुल फॉर्म। देन वी हैव डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. So DOE is a set of practices which are designed for optimization purpose. So there is RSM, response surface methodology, एंड जो इसमें हम बेसिकली प्लॉट करते हैं, इसमें अलग अलग लेवल्स होते हैं, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। ओके, लेवल सबके निकलेंगे। सो लेवल हाई, मॉडरेट, लो। पंखे की स्पीड भी होती है ना, हाई, मॉडरेट, लो। फैक्टर्स, अलग अलग फैक्टर्स जो इसको अफेक्ट करते हैं, इसके हाई, लो और मॉडरेट होने पे। सो देन देयर इज फुल फैक्टोरियल डिजाइन, फ्रैक्शनल फैक्टोरियल डिजाइन and central composite design and box Benken design. BBD, box Benken design, central composite design and full factorial and fractional factorial design. ये सारी आपकी डिजाइन होती है जो आपकी डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में आती है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन फुल फैक्टोरियल एंड फ्रैक्शनल फैक्टोरियल। फुल फैक्टोरियल में ऑल पॉसिबल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ फैक्टर्स एंड लेवल्स आर डन। ठीक है, तो जो ये होता है ना 2⁻3, इसमें 2 जो है वो लेवल है, 3 जो है वो फैक्टर्स है। तो 2 लेवल मतलब हाई और लो, 3 फैक्टर्स मतलब 3 अलग अलग, जैसे जेल स्ट्रेंथ, पॉलीमर कॉन्सेंट्रेशन एंड पीएच ऑफ पॉलीमर। तो ये आपके 3 फैक्टर्स हो गए जो ये 2 लेवल पे है। जेल स्ट्रेंथ हो सकती है हाईली विस्कस, लेस विस्कस। पॉलीमर हो सकता है एसिडिक, बेसिक, है ना। तो ये होते हैं अलग अलग फैक्टर्स। लेवल इसके 2 है। नंबर ऑफ रन्स फुल फैक्टोरियल में लार्जर होते हैं, स्मॉलर होते हैं इन द फुल फ्रैक्शनल फैक्टोरियल, बिकॉज हियर ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन इज टेस्टेड। जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उन्हें ही चेक किया जाता है। सो एक पूर्ण इन्फेक्ट्स कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस आ सकता है आपका फुल फैक्टोरियल से, और इससे सिर्फ मेन इफेक्ट्स कैप्चर होते हैं। फ्रैक्शनल फैक्टोरियल से सिर्फ आपके मेन इफेक्ट्स कैप्चर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नो, लेट मी टेल यू, ये जो है ना सीरीज, ये आपका बहुत बार आता है फॉर आरआरबी एंड क्यूए एंड डीआई। एम्स के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। सो एम्स के लिए यू कैन जस्ट लेट इट बी, बट यस फॉर आरआरबी एंड डीआई अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो ये आपके लिस्ट में होना चाहिए, ज़रूर इसको लिखे। और ये ऐसी चीज़ है ना जो कोई बताता नहीं है, और ये ऐसी चीज़ है ना जो कोई बताता नहीं, मतलब लोग यूजुअली इसको ये कर देते हैं कि भाई सही नहीं है ये, क्यों पढ़ा रहे हैं ये लोग, एक एक क्वेश्चन आता है। बट अगर आप बात करें, मैंने जो 9 दिन की सीरीज चलाई है, ये 9 दिन में मैंने 9 ऐसे सब्जेक्ट लिए हैं जो आप यूजुअली कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ते। फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग, सोशल एंड प्रिवेंटिव, क्यूए क्यूसी, फार्माकोविजिलेंस, राइट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये हिडन कॉन्सेप्ट है, मतलब इससे एक दो क्वेश्चन करके 10 क्वेश्चन आ जाएंगे सभी का मिलाकर। तो अब 10 क्वेश्चन आ गए तो नुकसान तो आप ही का है। तो एक बार इसे समझिएगा, पढ़िएगा, और डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ दैट इज इनफ। अमित चौहान जो टॉपिक है वो आपके मेरे प्लेलिस्ट में है इस यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हैं DI एंड RRB के विथ एक्सप्लेनेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते चलेंगे। अब अगर मैं बात करूं वैलिडेशन एंड क्वालिफिकेशन की, वैलिडेशन एंड क्वालिफिकेशन के लिए आपको ये पता होना चाहिए, वैलिडेशन में 2 टाइप होते हैं, वैलिडेशन और रीवैलिडेशन। और क्वालिफिकेशन आपके 4 टाइप के होते हैं, IQ, OQ, DQ, PQ। IQ, OQ, DQ, PQ। इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन, परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन एंड डिजाइन क्वालिफिकेशन। installation qualification, operational qualification, design qualification and performance qualification. Is this clear till here? Are we all clear till here? कळलं सगळ्यांना? Everybody have you understood? सबको समझ आया? Anybody having any doubts? किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट आहे कोणी नाही? कोणाला काही आहे का? विचारायचं आहे? झालं का? Yes.
चलिए, इंस्टॉलेशन मतलब आपने गीजर इंस्टॉल करा लिया, सही से इंस्टॉल हुआ या नहीं, ऑपरेशनल इंस्टॉल होके क्या वो गर्म हो रहा है, उसके जो अलग अलग सेटिंग्स है, ऑटोमेटेड कट ऑफ वो हो रहा है, डिजाइन क्या वो गीजर वैसा ही है जैसा आपको चाहिए था 25 लीटर का इस कंपनी का, परफॉर्मेंस क्या वो गीजर 3-4 साल तक चल पा रहा है, इंस्टॉल होने के बाद कैसा ऑपरेट कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा और उसकी डिजाइन कैसी है, ये सभी चीजें आपके आ जाती है क्वालिफिकेशन में। देन उसके बाद वैलिडेशन। सो वैलिडेशन आपके बात करें तो वैलिडेशन आपका होता है कॉन्करेंट वैलिडेशन, प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन एंड रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन। कॉन्करेंट, रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव। क्या कहा मैंने? कॉन्करेंट, रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन। सो वैलिडेशन आपके 3 टाइप के होते हैं, कॉन्करेंट, रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव। कॉन्करेंट, रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव। क्लियर है सभी को? कैन आई मूव अहेड? अब अगर मैं बात करूं वैलिडेशन के बाद, आपकी कुछ एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन यानी Q2 के तहत कुछ प्रोसेसेस होते हैं। सो LOD LAQ, लॉस ऑन ड्राइंग नहीं है ये, लिमिट ऑफ डिटेक्शन है जिसमें सिग्नल टू नॉइज रेशियो 3:1 होता है, while लिमिट ऑफ क्वांटिटेशन में सिग्नल टू नॉइज रेशियो 10:1 होता है। रोबस्टनेस, रगेडनेस, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन, स्पेसिफिसिटी एंड लीनियरिटी और रेंज। रेंज हाई से लो के बीच की रेंज एग्जैक्टली कितनी है। एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन में आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कितना एक्यूरेट है, कितना प्रिसाइज है, करेक्ट। क्लोजनेस ऑफ द ट्रू वैल्यू या एंड द मेजर्ड वैल्यू या ऑब्जर्व्ड वैल्यू, कितनी वैल्यू आपने ढूंढी और कितनी, मतलब एक प्रॉपर एक्यूरेसी और प्रिसिशन उसी से पता चलता है आपको, बुल्स आई। ठीक है। सो प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन इज डन बिफोर द रूटीन प्रोडक्शन। प्रोस्पेक्टिव आपके फ्यूचर के एस्पेक्ट से होता है, प्री प्लान्ड करते हैं आप इसको। कॉन्करेंट जब आपका प्रोडक्शन हो रहा है तभी आप वैलिडेट करते जाओगे, कॉन्करेंट। रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन हिस्टोरिकल, पुराने डेटा पे, हिस्टोरिकल डेटा पे। सो रेट्रोस्पेक्टिव में आप पुराने हिस्टोरिकल डेटा पे करते हैं। प्रोस्पेक्टिव में आप हमारे चैनल पे भी नॉन फार्मा पार्ट है, आप वहां से कर सकते हैं। RS अग्रवाल बुक है, इंडिया बिग सॉफ्टवेयर, आप वहां से भी कर सकते हैं नॉन फार्मा। ठीक है। प्रोस्पेक्ट मतलब आप फ्यूचर का देख के करेंगे, मतलब कि आप प्री प्लान करेंगे कि ये मैं ऐसे ऐसे करूंगा, दैट इज प्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है हिस्टोरिकल डेटा, पुराने डेटा को लेकर मैं, कॉन्करेंट मतलब जो चल रहा है रूटीन का उससे लेकर। ठीक है, क्लियर है सबको? रीवैलिडेशन, रीवैलिडेशन जो है आपका क्लोजनेस ऑफ रेसिस्टेंस फॉर द ट्रू वैल्यू और एक्सेप्टेड रेफरेंस रेंज। प्रिसिशन, closeness of agreement amongst a series of measurement, series of measurement is precision. Okay, series of measurement. So here we have repeatability, reproducibility and again intermediate precision. Repeatability, reproducibility and intermediate precision. Repeatability, reproducibility and limited precision. Yes or no? Yes or no? Is everybody clear till here? सबको समझा? थोड़े जाऊया, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ सकता हूँ मैं। एल्ला एनआरओ की चॉल्वे, यस, केक करने लग गयो लाडलो, व्हाट आर वी डूइंग माय डियर ऑल? आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग, क्या हम सभी लोग आगे बढ़ सकते हैं माय डियर? आपकी इजाजत है?
So we have repeatability, same analyst, same equipment, same laboratory. अगर पयाम ने XYZ लैब में XYZ इक्विपमेंट से किया है 6 बजे, तो पयाम ही XYZ इक्विपमेंट XYZ लेबोरेटरी से 8 बजे करेगा. Repeatability, same person, same equipment, same laboratory. Intermediate precision within the lab variations. तो अगर पयाम ने ट्यूसडे किया है तो अब वो वेनसडे करेगा, या तो पयाम ने ट्यूसडे को किया है तो गौरव ट्यूसडे को करेगा. ठीक है, कोई और एनालिस्ट चेंज होगा, या वो दिन चेंज होगा, या तो वो इक्विपमेंट चेंज होगा. कि पयाम ने सपोज ड्राई ग्रेनुलेटर से XYZ कंपनी से किया है, मैं ABC कंपनी के ड्राई ग्रेनुलेटर से करूंगा. कंपनी चेंज होगी, या तो बंदा चेंज होगा, या तो अमित वर्मा बुक. रिप्रोड्यूसिबिलिटी बिटवीन द लैब वेरिएशंस. पयाम ने XYZ लैब में किया है तो अब मैं दूसरे लैब में करूंगा, वो रिप्रोड्यूसिबिलिटी होती है. रिपीटेबिलिटी, इंटरमीडिएट प्रिसिशन और रिप्रोड्यूसिबिलिटी. रोबस्टनेस, एक एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कितना ज़्यादा सेंसिटिव है कि इट कैन डिटेक्ट द स्मॉल चेंज इन द टेम्परेचर एंड pH एंड प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी. Ruggedness defines the degree of reproducibility and is considered as a form of intermediate precision. So ruggedness एक intermediate precision का ही form है which gives the detector the degree of reproducibility. LOD, lowest amount of analyte which can be detected. LOQ, lowest amount of analytical which can be detected and quantified. यही डिफरेंस है LOD और LOQ में. LOD में सिर्फ आप डिटेक्ट कर सकते हो कि भैया इतनी इम्प्योरिटी है, बट एग्जैक्टली कितनी है ये नहीं कर सकते. LOQ में आप डिटेक्ट कर सकते हो कि भाई इतनी है और ये इतना अमाउंट में है, इस डिग्री पे है कि भाई 1 से 2%, लेकिन 1 से 2 में कितना 1.3. सो एग्जैक्टली यू कैन क्वांटिफाई. This is the major difference between LOD and LOQ. Okay. Next up we have ISO and NABL. तो जैसे NABH हॉस्पिटल का होता है, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स, वैसे ही नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर लेबोरेटरीज भी होता है. ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन. सो ISO आपका 9000 का होता है और 4000 का होता है. 9000 की सीरीज आपकी आ जाती है एनवायरमेंट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में. 4000 की सीरीज आपकी आ जाती है एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में. सो ISO सर्टिफिकेशन बहुत जरूरी होता है. ठीक है. बिस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये जो होता है सर्टिफिकेशन आपका कॉस्मेटिक्स के लिए होता है. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स. ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन. NABL, लेबोरेटरीज. NABH, हॉस्पिटल्स. देन रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस. सो CTD एक ट्राइंगल होता है जहाँ पे मैंने आपको रेगुलेटरी अफेयर्स में कराया होगा, राइट. कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट, ड्रग मास्टर फाइल वगैरह. टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5. टाइप 2 जो है आपका ड्रग सब्सटेंस एंड इंटरमीडिएट्स है. टाइप 3 पैकेजिंग है. टाइप 4 एक्सीपियंट्स है. टाइप 5 एक्सेप्टेड रेफरेंस है. CTD में टाइप 1 कॉमन, मॉड्यूल 1 कॉमन होता है, रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन. मॉड्यूल 2 में आपका क्वालिटी समरी, नॉन क्लिनिकल ओवरव्यू, नॉन क्लिनिकल समरी एंड क्लिनिकल समरी. Quality 3 is module 3 is quality. Module 4 is non-clinical study reports. Module 5 is clinical study reports. Non-clinical and clinical study reports. Module 4 and module 5. ठीक है. अलग अलग डेटा इंटीग्रिटी. एल्कोआ प्लस के प्रिंसिपल्स आर द मोस्ट कॉमन डेटा इंटीग्रिटी के प्रिंसिपल्स. डेटा इंक्रिप्शन, डेटा इंटीग्रिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एंड स्पेशली उसमें एल्कोआ प्रिंसिपल्स. इसको याद रखिएगा. इसको प्लीज़ स्टार मार्क लगा दीजिए, चांद सितारे लगा दीजिए, जो हो सके वो लगा दीजिए. काफ़ी बार पूछा जाता है. एल्कोआस प्रिंसिपल्स. ठीक है. एट्रीब्यूटेबल, लेजिबल, कॉन्टेम्परेबल, ओरिजिनल एंड एक्यूरेट. इसका फुल फॉर्म क्या कहा मैंने? एल्कोआ का फुल फॉर्म जो डेटा इंटीग्रिटी के लिए होता है, एट्रीब्यूटेबल, लेजिबल, contemporaneous, original and accurate. Accurate, original, contemporaneous,
legible and attributable. डेटा इंटीग्रिटी का एल्कोआ प्रिंसिपल. ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप कभी काफी बार पूछी जाती है. डॉक्यूमेंटेशन, MFR एंड BMR, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड्स, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, इसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है. डोज, डोसेज, रूट, है ना, सारी इंफॉर्मेशन. मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड, प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यू, क्वालिटी समरी, SOPs, और आप देख सकते हो कंपोनेंट्स ऑफ SOP. एक पर्पस होना चाहिए इस SOP को. SOP में स्टेप वाइज इलेबोरेटिव प्रोसीजर होनी चाहिए, स्कोप होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल्स कि भैया ये बंदा ये करेगा, ये बंदा ये करेगा. इट शुड बी साइंड एंड अप्रूव्ड, ऑफ कोर्स साइंड और अप्रूव्ड होना चाहिए. दीज आर ऑल द प्रिंसिपल्स और कंपोनेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स. और ये आपका DOE का कैसे फैक्टर्स अलग अलग है ना, और अलग अलग लेवल्स और उसके रिस्पॉन्सेज या आउटकम्स. फैक्टर्स, लेवल्स एंड द आउटकम्स और रिस्पॉन्सेज. सो आपको मोस्टली क्वालिटी अश्योरेंस अगर मैं बात करूँ तो क्या क्या पूछेंगे. क्वालिटी अश्योरेंस के बेसिक्स, डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी अश्योरेंस, कौन सा प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, कौन सा प्रोसेस ओरिएंटेड है, कौन सा डिफेक्ट को प्रिवेंट करता है, कौन सा आइडेंटिफाई करता है, ICH के गाइडलाइंस Q1 वगैरह, Q8 to Q10, GMP, GLP, GDP, change control, control strategy, process analytical technology, QTPP, CQA, CMA, CPP, जो कि आपके QBD के कंपोनेंट्स हैं. आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन एंड आउट ऑफ ट्रेंड का डिफरेंस, व्हाट इज दैट, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द क्रिटिकल डिसीजन. IPQCs, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, फिनिश प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट एंड रॉ मटेरियल क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट. क्वालिटी बाय डिजाइन में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, चेंज कंट्रोल, रिलीज कंट्रोल स्ट्रेटजी एंड रिस्क असेसमेंट, रिस्क बेनिफिट एनालिसिस, रिस्क डिसीजन ट्री. इसमें आपका इशिकावा फिशबोन एनालिसिस आता है, FMEA फेलियर मोड इफेक्टिव एनालिसिस, FMECA फेलियर मोड इफेक्टिव क्रिटिकल एनालिसिस, HECAP हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स. डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में सेंट्रल कंपोजिट, बॉक्स बेंकेन, फुल फैक्टोरियल एंड फ्रैक्शनल फैक्टोरियल, इनका डिफरेंस. ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस, रिस्पॉन्स ऑफिस, मेथोडोलॉजी, व्हाट इज लेवल, फैक्टर एंड रिस्पॉन्सेस, टाइप्स ऑफ वैलिडेशन, रेट्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव, कॉन्करेंट, कौन सा फ्यूचर के एस्पेक्ट्स है, कौन सा हिस्टोरिकल डेटा पे है, IQ, OQ, DQ, PQ, installation qualification, performance qualification, design qualification and operational qualification. What is intermediate precision, repeatability, reproducibility, ruggedness, accuracy, precision, LOD and LOQ. Accuracy is closeness of test results, while precision is amongst the series. ISO and NABL and base specification certification, ISO 9000, 14000. Then we have regulatory and compliance like CTD triangle, DMF, जो मैंने रेगुलेटरी अफेयर्स की क्लास में कराया है ऑलरेडी. डॉक्यूमेंटेशन में PMR, MFR, प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यू, SOPs. सो ये था आज की आपकी क्लास जिसमें मैंने कवर कराया पूरा का पूरा आपको क्वालिटी अश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल. मैं ऐसे ही आपके लिए दिलचस्प नीश टॉपिक्स लेके आऊँगा जो कि आपने पढ़े नहीं होंगे, सुने नहीं होंगे, लेकिन वो ज़रूरी होते हैं आपके पेपर में. सो विशिंग यू ऑल गुड लक एंड गुड हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू. दिन की शुरुआत आपकी हमारे साथ हुई है, सो बिल्कुल मेरे साथ. आई होप कि आपका दिन भी बहुत सुंदर जाए. बाय बाय ऑल ऑफ यू.